All are welcome in Paragon chemistry classes. Today I will teach you how to calculate molecular mass. For this you must remember atomic masses of first 30 elements. Now look at the board. Element atomic mass approx in AMU. AMU means atomic mass unit or U means unified unit. Means mass of one atom of element, or we throw 1 AMU equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So first हाइड्रोजन 1, एक्चुअली इसका 1.008 होता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं ताकि यूज जो करेंगे कैलकुलेशन में जो यूज होता है वो लगभग अप्रॉक्स ही होता है. हाइड्रोजन 1 मीन्स मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU. हीलियम 4 मीन्स मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इज 4. लिथियम 6.99 एक्यूरेट होता है, लेकिन 7 हम लोग लिखते हैं. मीन्स मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम इज 7. मास ऑफ वन एटम ऑफ बेरिलियम 9. मास ऑफ वन एटम ऑफ बोरॉन 10 AMU. मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14. एक चीज और आपको बता दें कि ये जो एटॉमिक मास लिख रहे हैं वो मेन आइसोटोप्स का लिख रहे हैं. जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 भी होता है तो कार्बन 12 का लिख रहे हैं. मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU. मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन 19 AMU. मास ऑफ वन एटम ऑफ नियोन 20 AMU. मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम 23 AMU. Mass of one atom of magnesium 24 AMU. Mass of one atom of aluminium 27 AMU. Mass of one atom of silicon 28. याद रखिएगा ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं है. फास्फोरस, मास ऑफ वन एटम ऑफ फास्फोरस 31 AMU. मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर 32 AMU. मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU. Mass of one atom of argon 36 AMU. Mass of one atom of potassium 39 AMU. Mass of one atom of calcium 40 AMU. Mass of one atom of scandium 45 AMU. Mass of one atom of titanium 48 AMU. Mass of one atom of vanadium 51 AMU. Mass of one atom of chromium 52 AMU. Mass of one atom of magnesium 55 AMU. Mass of one atom of iron 56 AMU. Mass of one atom of cobalt 59 AMU. Mass of one atom of nickel 59 AMU. Actually mass of one atom of cobalt actually 58.6 AMU होता है और ये 58.9 AMU होता है. तो कैलकुलेशन में हम लोग 59 लेते हैं. Copper 63.5 AMU and zinc 65.3 AMU. अब एक बार फिर से हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 36, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, स्कैंडियम 45, वैनेडियम 51, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कोबाल्ट 59, निकेल 59, कॉपर 63.5, जिंक 65.3. Molecular mass means
It is the sum of atomic masses of all atoms present in a molecule of compound. That is the sum of atomic masses of all elements present in a molecular compound is called molecular mass of that compound. Example, what is the molecular mass of H2SO4? So in H2SO4 contain 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. So molecular mass of H2SO4 means the mass of all atoms, the sum of mass of all atoms present in a molecule of H2SO4. So H2SO4, H2 2 into 1, number of hydrogen atom 2 and atomic mass of hydrogen 1. 1 into 32 and 4 into 16, 2, 32 and 64, total 98. So mass of molecular mass of H2SO4 equal to 98 AMU, means mass of one molecule of H2SO4 equal to 98 AMU. तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर मास किसी का हमको पता करना है तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटॉम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये फर्स्ट एग्जांपल था। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल हम दिखाते हैं, नंबर 2। तो हाउ विल यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज? तो इसके लिए हम लोग प्लेन इस तरह से लिखे ज्यादा अच्छा होता है कि C6H12 एंड O6 यानी 6 into 12, 6 number of carbon atoms, mass of one carbon atom is 12, 12 into 1 and 6 into 60, 72, 12, 96, total 180. So 180 AMU, mass of one molecule of glucose is 180 AMU। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर मोल कंसेप्ट में आ गए तो मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम। तो नेक्स्ट बाद में टॉपिक उसमें होगा। इसके बाद थर्ड नंबर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, फॉर्मूला आप जानते हैं Ca3PO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले Ca3PO4 को आप Ca3P2 और O8 कर दीजिए, तो आप देखेंगे Ca3P2O8, 3 into 40, 3 atoms of calcium, mass of one atom 40, therefore 3 into 40, 2 into 31, 2 atoms of phosphorus, mass of one phosphorus atom equal to 31, and 8 into 60, so 120, 62, 128 और टोटल 310 आ रहा है। तो मास, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 310 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, अगर इस तरह फॉर्मूला रहे, केमिस्ट्री में दूसरा कैटेगरी का फॉर्मूला जिसमें कि ब्रैकेट वगैरह यूज हो, तो उस केस में आप प्लेन बना लीजिए और फिर जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए।
इसके बाद फोर्थ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4.7H2O, और इसको हम लोग एक तरह से इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ इप्सम सॉल्ट, इसमें डॉट है इस तरह लिखा है, तो आप समझ लीजिए इसको हम लोग लिखेंगे CaSO4, यानी 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ सल्फर, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये 7H2O लिख लीजिए। आप ये समझ कर चलना होगा, ये डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो कर रहा है, ये मल्टीप्लाई को शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से Ca 1 into 40, 1 into 32, 4 into 16 and 7 into 18. Ca 1 into 40, 40, sulfur 1 into 32, 32, 4 into 16, 64 and 7 into 18. 18 क्यों लिखे? तो H2O, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, 1 ऑक्सीजन के लिए 16, टोटल 18। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट डॉट 7H2O 262 AMU। अब सबसे पहले हम लोग प्लेन फॉर्मूला रहे तो कैसे निकालते हैं, जैसे H2SO4 C6H12O6। दूसरा हम लोग सीखे कि अगर ब्रैकेट रहे तो उसको कैसे सीखते हैं, और तीसरा रहे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर रहे तो उसको हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5, मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4 NH4 whole twice SO4.6H2O। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसका टाइट्रेशन में यूज होता है मोर्स सॉल्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। फेरस अमोनियम सल्फेट और मोर्स सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है ना, कैटेगरी ऑफ सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये डबल सॉल्ट है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोर्स सॉल्ट, तो हम इस तरह लिखेंगे FeSO4 NH4 होल 2, फिर से SO4 and 6H2O, इस तरह से लिख ले बंच वाइज। ये 1 into 56, आयरन का 56 होता है, और ये सल्फर 32 और 64, एक सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन 64, टोटल जो है ये 96, 1 into 96, और यहाँ फिर से n जो है 14 plus 4, 18 into 2, 36, 2 into 18, इस तरह से फिर से 1 into 96 और 6 into 18, और ये 56, 96, 36, 96 और 108, और इस तरह से हम लोग ऐड कर दिए 32 इन हैंड 3, 8, 17, 20, 29, 2, 392। तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोर सॉल्ट 392 AMU। इस तरह से हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास न्यूमेरिकली दोनों सेम होता है। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एंड मोलर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मीन्स अब 1 मिनट इसको नोट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास नोट कर
कर लेते हैं हम लोग। मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 198 AMU, that is mass of one molecule of H2SO4 equal to 98 AM. Molar mass of H2SO4 98 gram per mole, that is mass of 1 mole molecules of H2SO4 equal to 98 gram, और mass of 1 mole equal to 6.022 10 to the power 23 molecules of H2SO4 equal to 98 gram. AMU means mass of one molecule, gram per mole means mass of one mole molecule. तो इस तरह से हम लोग हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ये इस क्लास में हम लोग पढ़े। थैंक यू।